কাণ্ডে দ্বিতীয়বারের নোটিশে সিবিআই এর মুখোমুখি ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। সকাল 10:30টায় তাকে আজ নিজাম প্যালেসে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বেলা 11:15টার কিছু পরে নিজাম প্যালেসে এসে পৌঁছন। সরাসরি চলে যাবো আমাদের প্রতিনিধির কাছে। প্রকাশ সিনহা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি। প্রকাশ, দ্বিতীয়বারের নোটিশে 20 দিনের মাথায় আজ নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিলেন শওকত মোল্লা। প্রকাশ, আজ কি কি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে তাকে সিবিআই আধিকারিকরা? জিজ্ঞাসাবাদ কি শুরু হয়েছে? একদমই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে এবং তুমি জানো শওকত মোল্লাকে আজকে তলব করা হয়েছিল এবং তিনি 11:30টা নাগাদ এসে পৌঁছেছেন। 11:30টার পর কয়লা পাচারকাণ্ডের যিনি প্রধান তদন্তকারী অফিসার উমেশ কুমার তিনি জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। এবং যে তথ্য আগেই আমরা সিবিআই সূত্রে জানতে পারছিলাম যে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে এবং কিছু এভিডেন্স তারা পেয়েছেন। একাধিক সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে, সেখানে শওকত মোল্লার নাম উঠে এসে এখন যে নতুন তথ্য আমরা সিবিআই সূত্রে জানতে পারছি যে সিবিআই এর আধিকারিকরা বেশ কয়েকজন কয়লা মাফিয়াদের তলব করেছিলেন, তাদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকে যখন সিবিআই এর আধিকারিকরা জানতে চান যে কলকাতায় কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের বৈঠক হয়েছিল, সেখানেই কিন্তু শওকত মোল্লার নাম উঠে আসে। একজন কয়লা মাফিয়া তিনি কিন্তু সিবিআই এর তদন্তকারীদের এবং ইডির তদন্তকারীদের জানিয়েছেন যে শওকত মোল্লার যে অফিস, সেই অফিসে একজন শীর্ষ নেতার সঙ্গে অর্থাৎ প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে তাদের বৈঠক হয়েছিল এবং সেই বৈঠকে শওকত মোল্লা ছিলেন, তার অফিসেই বৈঠক হয়েছিল এবং সেই প্রভাবশালী নেতা কয়লা মাফিয়াদের সঙ্গে সেই অফিসে বৈঠক করেছিলেন। এখন শওকত মোল্লার কাছ থেকে সিবিআই এর গোয়েন্দারা জানতে চান যে সেই বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কারা কারা ছিল এবং সেই প্রভাবশালী ব্যক্তি নেতা সেই বৈঠকে কেন কয়লা মাফিয়াদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। এবং তুমি জানো যে তথ্য আগেই আমরা সিবিআই সূত্রে জানতে পেরেছি যে একজন না একাধিক সাক্ষীদের বয়ানে কিন্তু শওকত মোল্লার নাম উঠে এসছে, বারবার নাম উঠে এসছে, তাই তাকে তলব করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। প্রথম দফার যে জিজ্ঞাসাবাদ সেটা শেষ হওয়ার পর শওকত মোল্লাকে কিন্তু বেশ কিছু নথি দেখানো হবে, এমনই খবর আমরা সিবিআই সূত্রে জানতে পারছি। ধন্যবাদ প্রকাশ। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় দুদিন ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের রাহুল গান্ধীকে তলব করেছে ইডি এবং তারই প্রতিবাদে আজও বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। আকবর রোডে কংগ্রেস দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভে ধুন্ধুমার। अरे हमें काम करने दो यार। करो करो सर करो। हम अरे हटिया। আজ সকালে দীর্ঘ সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা এবং আজও তারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। রাহুল গান্ধীকে দীর্ঘ টানা 22 ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে গত দুদিন ধরে এবং আজ আবারও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে ইডি এবং তার আগে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা গত দুদিনের মতো এদিনও আকবর রোডে কংগ্রেস দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। আজ সকালে সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা রণদীপ सुरजेवाला কি জানিয়েছেন শোনাবো। मोदी जी और अमित शाह जी को चुनौती, आप भी बैठ जाइए ईडी के साथ, क्योंकि वो तो आपके पिट्ठू हैं और तोते की तरह वही बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आप भी बैठिए। और मैं सोच रहा था जब गहलोत साहब और बघेल साहब बोल रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह जी और ईडी जब इकट्ठे बैठेंगे तो वो क्या सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को क्यों शुरू किया, जो देश की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने चेक से नेशनल हेराल्ड को पैसे क्यों दिए। सवाल नंबर 3, कांग्रेस पार्टी ने 67 करोड़ रुपया पत्रकारों की तनख्वाह
और कर्मचारियों की तनख्वाह नेशनल हेराल्ड अखबार का क्यों दिया? यही तो सवाल होंगे। जैसे मोदी जी फिर कहेंगे जैसे हमने देश की सारी संपत्ति बेच डाली, आपने क्यों नहीं नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल को बेच डाला? आपने उसे बचाया और संजो के क्यों रखा राष्ट्र हित में? कांग्रेस के करप्शन के कुएं से निकल रहे हर कंकाल उनके करप्शन की बहुत कहानियां बता रहे हैं, और हर कहानी जो है वो देश के लूट को 100% छूट वाली कहानी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये भ्रष्ट वीरों को इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार का जो अहंकार है आपको, और आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी विरासत है, उसको हम जिंदा रखेंगे, तो ये विरासत अब तो नहीं। আবারও যে ছবি দেখাচ্ছে নয়াদিল্লির ছবি, আজ আটক করা হয়েছে বহু মহিলা কংগ্রেসের কর্মী সমর্থককে। তার আগে ইডি অফিস অভিযান শুরুতেই আজ আটকে দেয় পুলিশ। এরপরে কংগ্রেসের বিক্ষোভে ধুন্ধুমার বেঁধে যায়, বেশ কয়েকজন কংগ্রেসের কর্মীকে আটক করা হয়েছে। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ, এবং সেই প্রতিহিংসার অভিযোগে গত দুদিনের মতো আজও কংগ্রেসের সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। इस वक्त मेरे साथ में अधीर रंजन चौधरी मौजूद हैं। अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे, इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी का, लेकिन राहुल गांधी यहाँ नहीं पहुंचे। अधीर आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, राहुल जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं आए। रणनीति में बदलाव? नहीं, हमें खबर मिला कि सीधा ईडी दफ्तर चले जाएंगे राहुल जी, बस यहीं तक हमें जानकारी है। अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग जो मार्च करने की बात कर रहे हैं, आप लोगों को मार्च की तो अनुमति है नहीं? अनुमति तो कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस जो करते हैं किसी की चीज की अनुमति नहीं है, लेकिन हम यहाँ हमारा अपनी हैसियत से हम पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये तो अधिकार है हमारा। अब तक तो प्रजातंत्र है, हम जानते हैं मोदी जी प्रजातंत्र को कब्रिस्तान में तब्दील करने के लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक प्रजातंत्र बचे हुए हमें लड़ना पड़ेगा। देखिए, और यहाँ पर अभी जो है जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, एक बार फिर से यहाँ पर ये आगे बढ़ रहा है। क्या आप लोग मार्च करने जा रहे हो? क्या श्री मार्च करने जा रहे हैं। अब ये जो है जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जो नेता है वो अब आगे बढ़ रहे हैं, युवा कांग्रेस के नेता अब जो है, क्योंकि इन लोगों को भी जो है अनुमति नहीं दी गई है, अगर मार्च कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनको इनकी भी हिरासत में लिया जाएगा। तो इस वक्त जो है एक बार फिर से जिस तरीके से तस्वीरें देखी गई थी कि महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की हिरासत में लिया गया था, देखिए, लेकिन इन लोगों को ये बैरिकेड लगा हुआ है, मेन गेट पे ये बैरिकेड लगा हुआ है, जो बैरिकेड में आपको दिखा रहा था। हम कोशिश करते हैं कि दूसरे गेट से आकर के आपको वो तस्वीरें दिखा सके और सामने से वो तस्वीरें दिखा सके। मनीष, हमको इधर से चलना चाहिए। देखिए, इस वक्त ये कांग्रेस मुख्यालय का गेट है। कांग्रेस मुख्यालय के गेट से वो लोग जो है आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन नहीं जा पाए। हम कोशिश करते हैं कि आपको गेट के जो दूसरी बाहर से वो तस्वीरें दिखा सके कि किस तरीके से पुलिस रोक रही है। और देखिए, बैरिकेड गिराए गए हैं, बैरिकेड गिरा करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की है, जहां पर ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें, नोक-झोंक, धक्का-मुक्की सब कुछ देखने को मिल रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं मार्च करते हुए राहुल गांधी के समर्थन में। अब वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको जो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो बैरिकेडिंग की गई थी वहीं से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें, और जो भी आगे बढ़ रहा है उसको हिरासत में लिया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको लगातार पुलिस की कोशिश ये है कि वो अपने साथ में हिरासत में लेकर के जाए। और देखिए, इस वक्त यहाँ पर इस तरीके से बैरिकेड से उनको गिराया जा रहा है।